हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हुमा एकेडमी। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। आज जो है मैं चैप्टर 5 स्टैंडर्ड 9 एसिड बेस एंड सॉल्ट की नोट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी, क्योंकि मैं इस लेक्चर में एसिड बेस एंड सॉल्ट के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ, और बहुत ही सिलेक्टेड एंड शॉर्ट आंसर करके मैंने आपको प्रोवाइड किया है मटेरियल, ताकि आपको लर्निंग में इश्यूज़ ना आए। तो वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिए। चैनल को अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट एंड जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर 1, क्लोरीन नाइट्रेट हाइब्राइड ammonium. Answer is ammonium. It is basic radical and all others are acidic radical. Now question number 2, hydrogen chloride, sodium hydroxide, calcium oxide, ammonia. Answer is hydrogen chloride. It is acidic in nature and rest of the all is basic in nature. Now question number C, acetic acid, carbonic acid, hydrochloric acid, nitric acid. Answer is carbonic acid. Its formula is H2CO3. It has only H acid, which has only 2 hydrogen atom, and all other have no hydrogen, 1 hydrogen atom. Ammonium chloride, sodium chloride, potassium nitrate and sodium sulfate. Answer is ammonium chloride. It is a salt of weak base and strong acid, hence it is an acidic salt, and all others are neutral salt for strong acid and strong base. Now question number 5, sodium nitrate, sodium carbonate, sodium sulfate and sodium chloride. Answer is sodium sulfate. It is a salt of strong base and rest of the क्या है weak acid, and it is a subacidic salt. All others are neutral salt and strong acid and strong base. Now question number F, calcium hydroxide, magnesium hydroxide, zinc oxide and sodium oxide. Zinc oxide, it is amphoteric in nature and all others are basic in nature. Now crystalline blue vitriol, crystalline common salt, crystalline ferrous sulfate, crystalline sodium carbonate. The answer is crystalline common salt. It does not have water of crystallization and all other have the molecular water of crystallization. Now last question of odd man out is sodium chloride, potassium hydroxide, acetic acid, sodium acetate. The answer is sodium chloride. It is a neutral in nature and all others are acids and base. Now question number 2, write down the changes that will be seen in each instant and explain the reason behind it. Now first question, 50 ml water is added to 50 ml solution of copper sulfate. यानी 50 ml वाटर में 50 ml कॉपर सल्फेट डालेंगे तो क्या होगा? कलर ऑफ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डिक्रीजेस, और ब्लू कलर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद है 2 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेट्स फेनोफ्थलीन आर एडेड टू द 10 ml सोल्यूशन ऑफ द सोडियम ऑक्साइड। द कलर क्या हो जाएगा उसका? पिंक, क्योंकि जब भी हम फेनोफ्थलीन जो इंडिकेटर है, जब उसको हम सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl का रिएक्शन करते हैं एसिड बेस का, तो उसका कलर जो है वो पिंक कलर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 or 3 fillings of copper were added to 10 ml dilutes nitric acid and stirred. So when 2 or 3 fillings of copper were added to 10 ml of nitric acid, it forms copper nitrate and hydrogen gas. Now next question, litmus paper was dropped into 2 ml dilute HCl, then 2 ml concentrated NaOH was added to it and stirred. तो क्या होने वाला है? Piece of litmus paper was added into 2 ml dilute HCl, blue litmus turns red. When same solution 2 ml concentrated NaOH was added to and stirred, then the red litmus turns blue. Now next question, magnesium oxide was added to dilute HCl and magnesium oxide was added to dilute NaOH. तो क्या होगा? जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम डाइल्यूट HCl के साथ ऐड करेंगे तो क्या फॉर्म बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर। और जब उसको, और जो कि वो क्या है? बेसिक इन नेचर है। लेकिन जब उसको हम NaOH के साथ, उसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली, क्योंकि बोथ आर बेसिक इन नेचर. Now next question, zinc oxide was added to limestone.
dilute HCl and zinc oxide was added to dilute NaOH. When zinc oxide was added to dilute HCl, it formed zinc chloride and water. In this reaction, when zinc oxide is a basic oxide, when zinc oxide was added to dilute NaOH, it forms sodium zincate and water. In this reaction, zinc oxide and acidic oxide, therefore zinc oxide is an amphoteric oxide because it shows with acidic and basic properties. Okay, now we move ahead. Question number G. Now question G is, dilute HCl was added to limestone. When dilute HCl was added to limestone, it forms calcium chloride, water and carbon dioxide gas. Okay, now after this, blue vitriol, pieces of blue vitriol in a treated test tubes. Pieces of blue vitriol we are heated in the test tubes. On cooling, water was added to it. क्या होगा जब pieces of blue vitriol were heated in the test tube? The crystalline structure of blue vitriol is broken down into the form of a colorless powder, and the water evaporates on cooling. When the water forms added to the colorless powder, blue vitriol regain its blue color. All the above changes are physical changes. Now next question. Dilute H2SO4 was taken into the electrolytic cell and electric current were passed through it. When electric current was passed through it, dilute H2SO4 in an electrolytic cell, H2 gas was formed at each cathode and and O2 gas was formed at the anode. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी सिंपल. क्लासिफिकेशन करना था तो मैंने टेबल बना के कर दिया कि जो बेसिक ऑक्साइड है उनको बेसिक के कॉलम में लिखा, एसिड को एसिड के और एम्फोटेरिक को एम्फोटेरिक के. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो जिस तरह हमारे बेसिक ऑक्साइड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड MgO Na2O Fe2O3. एसिडिक ऑक्साइड है CO2SO2. एम्फोटेरिक है ZnOAl2O3. ठीक है. नाउ वी मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 4. इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ दिखाना था. तो ये जो है मेरा सोडियम क्लोराइड का है, जिसमें आप अच्छे से देख सकते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है क्या है 11. तो 281 के हिसाब से मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है. अभी यहाँ पे जो है 28 बचेगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट करने वाला है, क्लोरीन को. तो क्लोरीन के जो है 287 थे. थोड़ा यहाँ पे एक्चुअली मसाला लग गया, इस वजह से थोड़ा हल्का सा ये हो रहा है. सॉरी फॉर दिस. तो देखो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो 287 था. जो एक इलेक्ट्रॉन्स इसको यहाँ से यहाँ पे मिलेंगे तो ये हो जाएगा 288. समझ में. तो क्या हो रहा है, NaCl में क्या होता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. इसलिए क्या हो जाते हैं, दोनों की बॉन्डिंग बनती है और हमारा नमक प्रिपेयर हो जाता है. इसका मैंने यहाँ पे एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखा है जो आपके काम आएगा. देखिए क्या होता है, जनरली आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम एंड द क्लोरीन एटम इज नॉट अ कंप्लीट ऑक्टेट. हाउएवर आउटर मोस्ट शेल इन द बोथ सोडियम एंड क्लोरीन्स ions are complete octet, and electronic configuration on with the complete octet indicate the stable state. Further, and the ionic bond is formed between the oppositively charged Na plus and Cl minus, and therefore an ionic compound NaCl having a very high stability is formed. है ना. तो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड का. मैग्नीशियम क्लोराइड का भी सेम मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है सामने, जब भी मैं आपको देती हूँ उसका डायग्राम. Magnesium has 2 electrons in its outermost orbit and get converted to positive ion, and with 2 unit positive charge, the chlorine atom has 7 electrons in the outermost orbit. So each chlorine in an outer atom needs only 1 electron to establish the octet state in outermost orbit. So 2 chlorine accept 1 electrons each from the magnesium atom, and consequently 2 chlorine ions are magnesium for bonding. देखो जैसे यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखा कि मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2. क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देता है, डोनेट. क्योंकि देखो उसका आउटर मोस्ट शेल में 2. अब इसको ये कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए क्या, या तो उसको 2 डोनेट करना पड़ेगा या तो मिनिमम 6 लेना पड़ेगा. तो 6 लेने में उसको तकलीफ आएगी, इससे अच्छा वो 2 दे देगा. तो एक वो इस क्लोरीन को देने वाला है, दूसरा वो इस क्लोरीन को देने वाला है. तो इस तरह जो है देखो एक क्लोरीन को देखो और जो है हमारा क्या बन रहा है, MgCl2 सॉल्ट. तो आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड वेरी वेल. अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. नाउ
क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब HCl और NaOH दोनों को डिसोसिएट करके और एक एक्वस सोल्यूशन बनता है। एडिशन ऑफ NaOH सोल्यूशन टू HCl सोल्यूशन लाइक एडिंग द लार्ज concentration of HN and large concentration of H plus ion. However, water dissociates into H plus and OH ion in the AMA to a very small extent. Therefore, on mixing the excess of OH ions combined with the excess of H plus ion to form a water molecules which mix with the solvent water. This change can be represented in the ionic equation. जैसे क्या होता है, ये H plus ये OH माइनस के साथ कंबाइन होते हैं, ये Na plus Cl के साथ, तो क्लोर नमक और पानी हमारा बनता है, और इसी को हम बोलते हैं कि when acid or base reacts with form water and सॉल्ट। ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैंने आपके लिए दिया है, आप इसको भी जो है यूज़ कर सकते हैं अपने नोट्स के लिए। ठीक है, नाउ वी मूव अहेड, एक्सप्लेन द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर्म नियर द कैथोड इज डबल दैट ऑफ द गैस फॉर्म नियर द एनोड। Scientists have shown that hydrogen gas is formed near the cathode and oxygen gas near the anode. From this, it is clear that electrolysis of water has taken place and its constituent element have been released. The concentrate therefore the reactions as follows. ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, क्लासिफाइज द एसिड्स अकॉर्डिंग टू देयर बेसिसिटी एंड गिवन एग्जांपल्स ऑफ ईच। ठीक है, तो उसका जो है मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया है कि जितने हाइड्रोजन एटम होंगे वो उसका एसिड ऑफ बेसिसिटी होगा, एसिड्स ऑफ बेसिसिटी। तो अब उसका एग्जांपल मोनोबेसिक का दिया है, डाइबेसिक का दिया है और ट्राइबेसिक का दिया है। तो आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 5, शो द डिसोसिएशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी इनका जो है हमें डिसोसिएशन दिखाना है और करना है। तो फर्स्ट जो है क्या था हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको मैंने ब्रेक किया तो H प्लस और Cl माइनस है और डिसोसिएशन यहाँ पे लार्ज है। उसके बाद सेकंड था मेरा NaCl, उसको मैं वाटर के साथ कर रही हूँ तो Na प्लस प्लस Cl आया और ये भी डिसोसिएशन क्या है, लार्ज है। थर्ड वन था मेरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी मैं जो है वाटर के साथ किया तो पोटेशियम प्लस प्लस ऑक्साइड्स मुझे मिला है और इसका भी डिसोसिएशन लार्ज है। उसके बाद है लास्ट जैसे फोर्थ वन अमोनिया, अमोनिया को भी जो है मैंने वाटर के साथ किया जिसमें मुझे अमोनिया मिला है और उसके साथ OH माइनस आयन भी मिला है, यहाँ पे डिसोसिएशन स्मॉल है। ठीक है, उसके बाद है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का भी सेम जो है मुझे क्या मिल रहा है, CH3 और CH3CO माइनस प्लस H प्लस, जिसमें डिसोसिएशन स्मॉल है, मैग्नीशियम क्लोराइड में भी स्मॉल है एंड कॉपर सल्फेट में लार्ज है। तो इस तरह जो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। मैं आगे बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने टेबल फॉर्मेट में दिया है ताकि उसके लिए आपको आसानी हो जाए, तो आप टेबल जो है यहाँ से देख सकते हैं, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस टेबल का। ठीक है, टेबल फॉर्मेट में मैंने आप चारों क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ इन केस एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कि मैंने पहले दे दिया था, अब जो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें केमिकल इक्वेशन लिखना था, फिर भी लेकिन मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टेटमेंट दिया है। पहला क्या था, NaOH को जो है HCl के साथ अगर हम रिएक्ट करेंगे तो NaCl और वाटर मिलेगा। उसके बाद क्या था, जिंक डस्ट को अगर हम H2SO4 के साथ करेंगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। मैंने थियोरी देखो आपके लिए लाइन लिखा है कि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड को अगर मैं जो है नाइट्रिक एसिड के साथ करती हूँ तो जो है मेरा कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर मिलने वाला है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करती हूँ तो पोटेशियम कार्बोनेट प्लस वाटर मिलने वाला है। उसके बाद मैं अगर HCl को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करती हूँ तो यहाँ बेकिंग सोडा जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पे मुझे NaCl वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला है। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंस बिटवीन द एसिड एंड बेस। इसको भी मैंने बहुत सिंपल और शॉर्ट पॉइंट्स लिखा है आपके लिए कि एसिड जो है सॉर टेस्ट होता है, इनका बिटर टेस्ट होता है, इसमें H प्लस आयन होते हैं, इसमें OH माइनस आयन होते हैं। ये ब्लू से जो है रेड होते हैं और ये रेड से जो है ब्लू होते हैं। इनका एग्जाम्पल दे दिया HCl, इनका एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट जो था वो है कटायंस एंड एनायंस। कटायंस का भी मैंने बहुत सिंपली दिया है कि पॉजिटिव चार्ज जो होंगे कटायंस, नेगेटिव चार्ज एनायंस। कटायंस जो है वो कैथोड पर अट्रैक्ट करेंगे, एनायंस जो है वो एनोड पर अट्रैक्ट करेंगे, और इनका एक एक दो एग्जाम्पल लिख लेना है आपको। ठीक है, तो वी मूव अहेड। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड किसको बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैथोड पे जाएंगे, इधर पे जो है इलेक्ट्रॉन्स वो किस पे जाएंगे, एनोड पे जाएंगे।
उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसका भी जो है क्लासिफिकेशन करना था, तो मैंने मोर देन 7 का टेबल बना दिया, लेस देन 7 बेस और 7 इज न्यूट्रल। अब मोर देन 7 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, विनेगर, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। लेस देन 7 में सोडियम एसिटेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। न्यूट्रल में कॉमन सॉल्ट एंड पोटेशियम ब्रोमाइड। तो इस तरह जो है मेरा चैप्टर नंबर 5 का सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया आपके लिए, जो आपको एग्जाम में नोट्स पढ़ने के लिए अच्छा होगा, या आपको इसके अलावा और भी कोई नोट्स दूसरे रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके अलावा और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए बनाने की लाने की कोशिश करूँगी। उसके अलावा मैं बोर्ड एग्जाम के टेस्ट सीरीज सॉल्व करने वाली हूँ, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, क्योंकि जब आप मेरे बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही मेरी बनी हुई वीडियो आप तक के उसका नोटिफिकेशन आ पाएगा। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। तो ठीक है, फिर आज जो है इस वीडियो को फुल स्टॉप लगाते हैं और जो है इस वीडियो को एंड करते हैं। तो ठीक है, फिर थैंक यू फॉर योर वॉचिंग एंड बाय बाय।